Bismillahirrahmanirrahim. Error function and complementary error function. The error function of x is defined by the integral 2 over pi under root integral 0 to x e power minus t square dt, where x may be real or complex variable and is denoted by error function of x. That is, error function of x is equal to 2 over pi under root integral 0 to x e power minus t square dt. The complementary error function is denoted by this symbol and defined as the complementary error function of the variable x is equal to 2 divided by pi under root integral x to infinity e power minus t square dt. यहाँ पे जो दो फार्मूले है, दोनों फार्मूले बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन सिर्फ there is a difference between the limits. Here the limits of integration is 0 and x, whereas here the limits of integration are x and infinity. The first formula represents error function of the variable x. The second formula represents complementary error function of variable x. Now we read properties of function of 0. If x is equal to 0, यहाँ जो x है, if this x is equal to 0, then error function of 0 is equal to 0. इसी फार्मूले की मदद से अगर हम error function of 0 मालूम करना चाहे तो it will be equal to 0. Similarly, error function of infinity will be equal to 1. Here we see sum of the error function of x and complementary error function of x. This summation will be equal to 1. x के लिए एरर फंक्शन और कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का समेशन 1 होगा, तो ये रिज़ल्ट याद रखना चाहिए. सिमिलरली एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एरर फंक्शन ऑफ एक्स. तो ये चंद प्रॉपर्टीज़ थे और ये डिफिनीशन है, इसको याद रखना है. अब हम आते हैं स्टेप फंक्शन, unit step function. The unit step function is defined by u of x minus a is equal to 1 for x greater or equal to a, and it is equal to 0 for x less than a, where a is greater or equal to 0. यहाँ पे x greater or equal to a, if x is equal to a or x greater than a, this condition states that x is either equal to a or x is greater than a. So for this domain, the function is equal to 1, that is, the function will be a constant function and its graph will be a horizontal line 1 unit above x axis. ये जो ग्राफ है ये 1 यूनिट above है. और यह जो कंडीशन है for x less than a, यहाँ पे a है, तो अगर x लेस देन a हो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 होगा और इसके लिए ग्राफ x एक्सिस पे कोइंसाइड होगा. तो यूनिट स्टेप फंक्शन का जो ग्राफ है, ये जो हमें ब्लैक लाइन नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला फंक्शन का जो 0 वैल्यू है इसी के लिए ये ग्राफ है, और ऊपर इसी कंडीशन के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसका ग्राफ यही है. और ये यहाँ ये जो ग्राफ है यहाँ ए पे आकर ये ऊपर जंप लगाता है बाई 1 यूनिट, तो इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं. और चूँकि ये 1 यूनिट अबाव जाता है तो इसी वजह से इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं. और ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा होता है जिसका कर्व डिस्कनेक्ट ना हो. ये कर्व यहाँ से आ रहा है और यहाँ इसकी डिस्कनेक्शन है, इसी ए पे ये डिस्कनेक्ट हो गया और ये उसने जंप लगाया है, तो ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है. यूनिट स्टेप फंक्शन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और ये 1 यूनिट ये ऊपर जंप लगाता है, तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं और ये इसका डिफिनीशन है. अब नीचे एक फंक्शन है पल्स ऑफ यूनिट हाइट. The pulse of unit height of duration t is defined by f of x is equal to 1 for x belong to the closed interval 0 t.
टी। अगर x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा, t हो या t से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये 1 यूनिट अबव x एक्सिस होगा। और अगर x की वैल्यू t से ग्रेटर हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगा और इसका ग्राफ x एक्सिस पे लाई करेगा। अब यहाँ पे फंक्शन है साइनोसाइडल pulse function. The sinusoidal pulse function is defined by f of x equal to sin ax for x belong to the closed interval 0 pi by a, और function is equal to 0 for x greater than a। तो यहाँ एक क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर पाई बाई a तक। तो 0 से लेकर पाई बाई a तक यहाँ 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाई a है, और यहाँ x की वैल्यू हेयर वी हैव वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड पाई बाई a। तो इसी x की इन वैल्यूज़ के लिए या इसी डोमेन के लिए फंक्शन बराबर है साइन ax और इसका ग्राफ यही इसका ग्राफ है। अगर x की वैल्यू पाई बाई a से ग्रेटर हो, अगर पार वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन पाई बाई a, तो फंक्शन बराबर है 0 और इसका ग्राफ x एक्सिस पे कोइंसाइड होगा। तो ये जो लाइन हमें नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये इसी साइनोसाइडल फंक्शन का ग्राफ है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल फंक्शन की जानिब। रेक्टेंगल फंक्शन क्या है? यहाँ पे इसी फंक्शन का ग्राफ, ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, ये वाला और इस तरह ये वाला, ये इसी साइनोसाइड रेक्टेंगल फंक्शन का ग्राफ है और ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो रेक्टेंगल फंक्शन ऑफ इफ ऑफ x डिफाइंड ऑन r इज इफ ऑफ x इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल a b एंड इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। a और b, यहाँ पे a है, यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है और x की जो अदर वैल्यूज है वो यहाँ पे है। तो इसी क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन बराबर है 1 और इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 यूनिट ये अबव x एक्सिस होगा। और अगर इसके अलावा इसी क्लोज इंटरवल के अलावा फंक्शन 0 होगा और इसका ग्राफ x एक्सिस पे कोइंसाइड होगा। So this line is part of the graph, this is part of the graph, this is part of the graph, और ये जो ग्राफ है ये डिसकनेक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस किस्म के फंक्शन को हम रेक्टेंगल फंक्शन कहते हैं। एक और फंक्शन है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन इफ ऑफ x डिफाइंड ऑन r इज इफ ऑफ x इक्वल टू 1 फॉर x mod लेस देन इक्वल टू a एंड इट इज 0 फॉर x mod ग्रेटर देन a। तो यहाँ ये वाला जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x लेस देन आर इक्वल टू a, इसका मतलब ये है, और x ग्रेटर इक्वल टू माइनस a, इसका मतलब यही है। तो यहाँ माइनस a है, यहाँ प्लस a है। तो इसी क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है और ये 1 यूनिट अबव x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये फंक्शन के इसी पार्ट के लिए है। अगर x ग्रेटर देन o हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x ग्रेटर देन a प्लस माइनस a। तो प्लस माइनस a, x ग्रेटर देन प्लस a या x ग्रेटर देन माइनस a। तो x ग्रेटर देन प्लस a यहाँ पे है, ये जो पार्ट है यहाँ पे है, x पार x ग्रेटर देन a, तो फंक्शन की वैल्यू 0 है और इसका ग्राफ x एक्सिस पे कोइंसाइड है। पार x ग्रेटर देन माइनस a कहाँ है? हेयर वी हैव माइनस a। तो पार x ग्रेटर देन माइनस a फंक्शन की वैल्यू 0 है और इसका ग्राफ x एक्सिस पे लाई करता है। तो दोनों फंक्शन सिमिलर है। तो गेट फंक्शन रेक्टेंगल फंक्शन का एक
it is a rectangle function. We can say that get function is a rectangle function. Note that get function is symmetric about axis of codomain. Codomain क्या है? Value of a function. Value of y is codomain, that is value of f of x is codomain. तो इसी y एक्सिस के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में गेट फंक्शन सिमेट्रिक है. Note that get function is symmetric about axis of codomain. Get function is also a rectangle function, और ये भी एक rectangle function है. डिराक डेल्टा फंक्शन. डिराक ये एक मैथमेटिशियन था जिसने इसी फंक्शन को डिफाइन किया है, तो उसी की नाम से इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं. डिराक डेल्टा फंक्शन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है एट x इक्वल टू 0, और डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल दोज नॉन ज़ीरो वैल्यू. यानी इसकी वैल्यू क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी. इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर x इज इक्वल टू 0. अगर x 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, इफ वी डिनोट दिस फंक्शन बाय एफ ऑफ एक्स, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी एट x इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी एट x नॉट इक्वल टू 0. इसका जो ग्राफ होता है इस तरह, अगर हम इस तरह ड्रा करें, यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x 0 होता है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी. मतलब ये है कि एट x इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ इस तरह होता है, इस तरह एक बहुत ज़्यादा इस तरह. यानी अगर x 0 हो तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है. और राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में x की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है. इसके अलावा इसका जो इंटीग्रेशन होता है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर हम फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कहे तो x की वैल्यू बराबर होती है 1. यानी डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इन्फिनिटी होगी. इसका ग्राफ यानी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और इसका जो वेट है ये बहुत ज़्यादा नैरो होगा, और पार वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू 0 होगी. इसके अलावा अगर इसका हम इंटीग्रल ले फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 1 आती है. यानी डिराक डेल्टा फंक्शन इसका जो डिफिनीशन है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यही है, दूसरा हिस्सा यही है, और इसका मतलब है 1 यूनिट एरिया. तो इसका ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा, इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो एरिया है ये बराबर है 1 स्क्वायर यूनिट. तो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये एक मुख्तसरन सा वीडियो है. यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल, यहाँ पे ये जो हमने बहुत ज़्यादा ऊंचाई को जाहिर करने के लिए एक एरिया शो किया है, जिसका एरिया 1 यूनिट है. यहाँ एक रेक्टेंगल है जिसकी वेड्थ एप्सिलॉन है, और जिसका हाइट 1/एप्सिलॉन है. इसको हमने 1/एप्सिलॉन क्यों लिया? अगर इसी लेंथ को हम एप्सिलॉन ले तो इसी हाइट को हम 1/एप्सिलॉन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया बनता है
वेट इनटू हाइट, तो एप्सिलॉन को अगर हम 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो एरिया बनता है वो 1 स्क्वायर यूनिट बनता है। अब अगर इसी एप्सिलॉन को हम व्हेन दिस एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 then this 1/एप्सिलॉन विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। यानी अगर इसी वेट को हम यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है। अब अगर इसी वेट को हम कम करें, इफ दिस वेट अप्रोचेस 0 then this height will approach to infinity। अगर when this epsilon approaches 0 then 1/एप्सिलॉन will approach to infinity। यहाँ पे एरिया हम 1 स्क्वायर यूनिट रखेंगे। तो अगर वेट हम 0 तक कम करें तो इसका हाइट इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। तो इस किस्म के फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। ये फिज़िक्स में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज में ये यूज़ होता है। तो ये एक मुख्तसरन यहाँ पे हमने इसको बयान किया और इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक और फंक्शन है सेग्नम फंक्शन। सेग्नम फंक्शन पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। द सेग्नम फंक्शन इज़ डिफाइंड बाई इफ़ आप x इक्वल टू 1 पार x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू 0। तो पार x ग्रेटर देन 0, यहाँ जो राइट साइड में यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, इसी क्वाड्रेंट में और इसी क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो पार x ग्रेटर देन 0 इफ़ आप x इक्वल टू 1, तो इसका जो इफ़ आप x इक्वल टू 1 का ग्राफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ जो सेंस x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये लाइन y एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो वाइट सा 0 सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इट डज़ नॉट टच दिस y एक्सिस। सिमिलरली पार x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 नेगेटिव हो तो इफ आप x इक्वल टू -1, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो y एक्सिस के साथ ये टच नहीं करेगा। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विल नॉट मीट दिस y एक्सिस। सिमिलरली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विल नॉट मीट दिस y एक्सिस। तो इस किस्म के फंक्शन को हम सेग्मेंट फंक्शन कहते हैं और ये इसका ग्राफ है। अब अगर इसके ग्राफ को हम देखें तो ये जो शोक लाइन है ये वाला और ये वाला इसी सेग्मेंट फंक्शन का ग्राफ के दो हिस्से हैं और ये आपस में एक दूसरे से अलहदा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। दिस सेग्मेंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। A function f is said to be periodic if f of x plus p is equal to f of x for all x, if smallest positive number of set of all such p exists, then that number is called the fundamental period of f of x. For small value of p, if a function f of x is such that f of x plus p is equal to f of x, then such a function is called periodic function or period p। अगर p की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो और उन सब वैल्यूज़ में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, अगर उसी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस पी बराबर हो एफ ऑफ एक्स, तो इसी फंक्शन को हम पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं और उसी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी को हम पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं। देन दैट नंबर इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। नोट, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियाडिक विदाउट फंडामेंटल पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है, इस बात को याद रखें फिजिक्स वाले स्टूडेंट। कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियाडिक विदाउट फंडामेंटल पीरियड। साइन एंड कोसाइन आर पीरियाडिक फंक्शंस विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। ये बात नोट कर ले, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन ये पीरियाडिक फंक्शन है आप पीरियड 2 पाई।
यानी साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2 पाई। अगर यहाँ पे हम f की जगह साइन पुट करें और यहाँ पे 2 पाई पुट करें तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ अगर हम काज लगाएं तो काज ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू काज एक्स। तो साइन और काज का पीरियड क्या है 2 पाई। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है स्क्वायर वेव फंक्शन। A square wave function if of x are period 2a is defined by if of x equal to 1 for x less than a greater than a, if of x equal to minus 1 for x less than 2a greater than a। यहाँ पे पीरियड क्या है, यहाँ पे पीरियड है पीरियड 2a। अब ये फंक्शन, इस किस्म के फंक्शन का ग्राफ यहाँ हमें नज़र आ रहा है 1 if of x equal to 1। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे if of x equal to 1 है, यहाँ जो ग्राफ है if of x equal to 1 है, यहाँ if of x equal to minus 1 है, यहाँ if of x equal to minus 1 है। अब यहाँ जो इसका जो ये वाला हिस्सा है यहाँ 0 है, यहाँ माइनस a है, यहाँ 2 है। तो a square wave function if of x of period 2 pi is defined by if of x equal to 1 पर x बिलोंग टू 0a। यहाँ ये जो इंटरवल है इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो 0 से लेकर a तक ये 0 है और ये a है, ये वाला जगह a है। तो 0 से लेकर a तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 यूनिट अबव है। यहाँ देख ले, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ x इज इक्वल टू a है। पर x लेस देन a ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या है 1 है। तो इसका ग्राफ यही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जगह क्या है, दिस इज 2a, दिस इज 2a, a 2a, तो a और 2a। तो अब इसका ग्राफ क्या है, ये क्या है 2a, x लेस देन 2a बट x ग्रेटर देन a। तो इसी a से अगर x की वैल्यू ग्रेटर हो और इसी 2a से स्मॉलर हो तो फंक्शन क्या है -1। यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है a, ये x जो है ये a और 2a के दरमियान में है। तो यहाँ a है, यहाँ 2a है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू -1 है, जिसका ग्राफ यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ 2a है, यहाँ 3a है। तो इसी 2a और इसी 3a के ये वैल्यू ऑफ x है, यहाँ भी वैल्यू ऑफ x है। तो इफ ऑफ x इक्वल टू 1 है, जिसका ग्राफ यही है। अब यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x माइनस a है। तो यहाँ एक ओपन इंटरवल है जहाँ पे इफ ऑफ x -1 है और इसका ग्राफ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसको कहते हैं स्क्वायर वेव फंक्शन, जिसका डिफिनीशन यही है। और इसी फंक्शन का जो पीरियड है 2a है, 2a। तो ये इसका ग्राफ है, ये वाला और इस तरह ये और ये। तो इसको हम स्क्वायर वेव फंक्शन कहते हैं और इसका पीरियड 2 है। अब हम आते हैं नीचे